Good morning, my dear students. Welcome to science class. Today we start our chapter 1 Nutrition in Plants of your science subject. In this chapter we will mainly discuss about the how the plants get nutrients from their food. In a previous class we will revise about components of the food and their sources. Before starting our chapter, I will explain you all the two terms. The first one is nutrients. Those components of food that are essential for our body are called nutrients. वो components food के जो आपके body के लिए essential है, important है, उसको हम क्या बोलते हैं? Nutrients. And what are the nutrients? Carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are the components of the food and they are also called the nutrients of the food. And second term is nutrition. And what is nutrition? It is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body. Nutrition क्या है? किस तरह से आपका प्लांट फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है और टेक कर रहा है, ले रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. Types of nutritions. There are the mainly two types of nutritions in plants. First is autotrophic nutrition. Here the word autotrophic nutrition already explained that auto means self, trophos means nourishment. The mode of nutrition in which organisms synthesize their own food from simple substances is called autotrophic nutrition. वो autotrophic nutrition किसको बोलते हैं? वो organism जो कि अपना खुद का क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. किससे? सिंपल सब्सटेंसेस से. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस ऑकर इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और इस टाइप का न्यूट्रिशंस जिस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. और मेनली किस में प्रेजेंट होता है? जो कि आपके ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उसमें मेनली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है. And what was the second mode of nutrition is heterotrophic nutrition. Hetero means other and trophos means nourishment. Okay. The mode of nutrition in which organisms can depend on other for their food is called heterotrophic nutrition. ठीक है. वो mode of nutrition जिसमें organism depend होता है other organisms में अपने फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, सम प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, फंगस. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन द अदर वन फॉर देयर फूड. दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड द टाइप ऑफ प्लांट्स comes under this mode of nutrition are known as heterotrophs. वो प्लांट्स जो कि इस न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के? किसमें? प्लांट्स में. द फर्स्ट वन इज अ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. What is parasitic plants? A parasitic plant is one that lives inside or outside the other organism and derive their food from them. Parasitic plants क्या होते हैं? जो कि किसी plants के अंदर रहते हैं या फिर रैप होते हैं outside the organisms and derive their food from them. वो से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? parasitic plants. The plants non-green which obtain their food from other organism is called parasite. अब इसमें दो terms आते हैं important. The first one is a parasite and second one is a host. The most simple example is that जब आपके घर में कोई आता है, ठीक है, तो आप क्या हो? होस्ट हो. ठीक है. और जो आ रहा है, जो गेस्ट है, उसको आप क्या समझ सकते हो कि वो क्या है? पैरासाइट है.
ठीक है, क्योंकि वो आपके घर में आएगा और आपका फूड क्या करेगा, ईट करेगा, खाएगा, ठीक है, आपके घर में रहेगा, तो वो क्या है, पैरासाइट है, और आप क्या हो, होस्ट हो. तो सेम इन द plants non-green which obtain their food from other organism is called parasite. As you already know that the all green color plants is come under the category autotrophic modes of nutrition के अंदर आते हैं, ठीक है. तो वो प्लांट्स जो कि नॉन ग्रीन है और ऑब्टेन कर रहा है फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म से, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वूज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इट्स कॉल्ड होस्ट. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट. मोस्ट सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स कमिंग इन दिस category is Cuscuta amarvale. You can normally see the yellow color plants wrapped around the green plants. Normally आप लोग क्या देखते हो, फॉरेस्ट वगैरह में देखते हो या अपने एरिया में देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है, येलो कलर का प्लांट्स होता है, ठीक है, जो कि किसके अंदर रैप होता है, किसके अराउंड रैप होता है, ग्रीन प्लांट्स के अराउंड रैप होता है. तो वो कस्कुता होता है, अमरबेल कहते हैं, जो कि क्या करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है. सेकेंड वन इज इंसेक्टिवाइरस plants. These are some plants which can trap insect and digest them for their nutrition. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, न्यूट्रिशंस के लिए. These plants are green in color but lack नाइट्रोजन एलिमेंट्स. ये प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बट उसमें जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. ओवरकम करने के लिए मतलब ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. हैंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स और अ कार्निवोरस प्लांट्स. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं, इंसेक्ट ईट कर रहे हैं. एंड कार्निवोरस प्लांट्स क्यों बोलते हैं, वो प्लांट्स क्योंकि वो क्या करते हैं, एनिमल को ईट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स. एन एग्जाम्पल इसमें, मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल इसमें है पिक्चर. Here you can see the structure of pitcher plants. Okay, in a pitcher plant, the pitcher-like or a jug-like structure is the modified part of the leaf. Here you can see the jug-like structure. This jug-like structure is the modified part है किसका, leaves का. इसका leaves का क्या हुआ, modification हुआ है. The apex of the leaf form a lid. जो apex है ये, दिस वन एपेक्स, दे विल फॉर्म द लिड. ये क्या बनाता है, एक लिड का फॉर्मेशन करता है. विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. जो कि क्या करता है, किसका काम क्या है, ओपन एंड क्लोज करना, ठीक है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच एंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स. ठीक है, जो लिड के अंदर जो है यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स प्रेजेंट होने के कारण वो क्या करते हैं, जो आपका इनकमिंग इंसेक्ट्स है उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं. द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. और जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर आता है, लिड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, और जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher plants. जो भी आपके digestive juices ये pitcher plant secrete करता है, आपका इंसेक्ट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं, and its nutrients are absorbed. और जो उसका nutrients होता है वो absorb कर लिया जाता है by the plants. ठीक है. The third one is saprotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms take food from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. वो mode of nutrition जिसमें organisms, जो plant है, वो कहाँ से nutrition ले रहा है, dead and decaying matter. ठीक है, dead मतलब जो कि मर चुका है, and decaying मतलब जो कि rotten है, सड़ा हुआ है, उससे वो क्या करता है, अपना nutrition absorb करता है. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. वो organism जो कि इस type of mode of nutrition को use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, saprotrophs. For example, fungi. And the fourth one is symbiotic plants.
Sometimes two plants of the different species live together and help each other in obtaining food and shelter. Sometimes कैसा होता है, दो जो plants है उसमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो दूसरा एक को कुछ प्रोवाइड करता है एंड दूसरा उसकी क्या करता है, हेल्प करता है. म्यूचुअल रिलेशनशिप है. म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जब आप फ्रेंडशिप करते हो तो क्या करते हो, अगर आपने एक चॉकलेट दी है तो वो आपको रिटर्न में क्या करेगा, कुछ और प्रोवाइड करेगा, ठीक है, चॉकलेट वगैरह प्रोवाइड. ऐसे ही प्लांट्स में होता है. तो समटाइम टू प्लांट्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर. दो प्लांट्स जो कि डिफरेंट स्पीशीज के हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो एक साथ रहते हैं, लीव करते हैं टुगेदर और एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्या ऑब्टेन करने के लिए, food and shelter. This association is called symbiosis and such plants are called symbiotic plants. इस association को, ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, और इस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स. द रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लीव टुगेदर, वो रिलेशनशिप जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट प्लांट्स एक साथ रहते हैं एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और वो शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे में, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एग्जाम्पल्स लिचिन्स एंड राइजोबियम. इसके अंदर क्या होता है, दो प्लांट्स आते हैं, लिचिन्स एंड राइजोबियम. लिचिन्स इज एन एसोसिएशन इन विच algae and fungus live together. लिचिस किसके एसोसिएशन को बोला है, एल्गी एंड फंगस दोनों एक दूसरे के साथ जब रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिचिन्स. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी. जो फंगस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को. एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड द फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस. एंड इन रिटर्न में क्या करता है एल्गी, क्योंकि एल्गी इज अ ग्रीन कलर प्लांट है, तो ग्रीन कलर प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का यूज करके ये उसको फूड प्रोवाइड करता है. एंड फंगस इन रिटर्न में उसको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी. तो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द nutrients. Then second one is nutrition, and then third topic is type of nutrition. There are the two types of nutrition. First is autotrophic nutrition, second one is heterotrophic nutrition. And then type of heterotrophic nutrition in plants are, first is parasitic nutrition, second was insectivorous plants, third one is saprotrophic nutrition, and fourth one is symbiotic class. In next class we will detail study about the photosynthesis.